Good morning, friends, and welcome to Ashok Leyland presents Trans India Real People, Real Emotions. One of the ways to find a solution to a common problem is to discuss the problem threadbare, collect all sides of the arguments, and point at the best possible solution. The word Manthan means something similar reflection through study. All India Transporters Welfare Association, also known as AITWA, started the Manthan series many years ago with the aim to deep dive into issues related to the trade and come up with best possible solutions. The last Manthan was held a couple of years before COVID, and it was high time the members of AITWA churned out their thoughts on industry issues yet again. Previously, the Manthan events organized by AITWA were held at a national level with transporters from across India attending the same. This time, with a lot of inputs from NextGen, the format has been tweaked. So instead of a national Manthan, AITWA has planned to hold regional events. The first event of the Manthan series was held in West Zone in Mumbai, which was also attended by members from Gujarat. And of course, the senior leadership from Delhi was also present for the event. So, what is the plan for Manthan in Mumbai? Let's hear it from the young General Secretary of AITWA, Abhishek Gupta. So the agenda in Manthan generally is to discuss concurrent industry issues, which members face, which come to AITWA regularly, so that we can brainstorm on them and come out with a roadmap for the members for the coming years. So the major subjects I think in focus this time will be technology, on what are the new things that are happening to create awareness for members. A couple of technology products that AITWA has worked on and plans to work on will be discussed and brainstormed. So IT has been changing rampantly. Technology adoption is very fast. People are more acceptable to using technology for their business, and there are a lot of tools that people are getting to use and to improve their efficiency in their business. But besides Manthan, AITWA had a couple of other things lined up during the day. Abhishek tells us more about that and also tells us about some activities of AITWA. We've got two external speakers for knowledge sessions. One is going to be talking on TDS compliance, which is a big issue right now in the industry. And one is a gentleman from the finance industry who will be talking about the need to scale up and the need to professionalize your business from an external investment point of view. The idea is not to take investment, but the idea is to improve your business operations, make it attractive to external investors. So in AITWA, we are constantly, brainstorming on subjects which keep coming to us at the industry level and take them up at the ministry, at the right forums for discussion. I think one of the key issues that AITWA has been working on is coordinating member issues with customers and trying to identify gaps which members are not able to raise to customers. We are trying to be that voice to be able to improve the efficiency both for the customer and the member. We are also working with the government on certain policy changes and hoping that we'll get some breakthroughs in this coming year. See, for the transport industry, I think the future is great. There is immense opportunity. With the economy booming, transport definitely has a bright future. It's just that one needs to constantly improve their services, improve their efficiency, improve their deliverables to the customer to be able to sustain. The future of the industry is no doubt very bright, but the dynamics keep changing. And there is one person in AITWA who has been studying the industry very closely and making predictions on the future. Coming up after this very short break, predictions on the industry from Pradeep Singhal, former president AITWA. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है. उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है. इनके बीच एक लॉयर भी है, एक इंजीनियर भी है, और एक डिजाइनर भी जा रही है.
क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India. Real people, real emotions. Listen to what Pradeep has to say regarding the future of transporters. Just for your information, Pradeep has been making predictions on changes which have hit bullseye until now. पहले हम पहुंचते हैं कि हमने पहले क्या सोचा था। हमने ये कहा था कि जो छोटे हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो भी हमारे ट्रक ओनर, सिंगल ट्रक ओनर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द न्यू मार्केट। सो विच इज़ हैपनिंग नाउ, वी आर सीइंग कि भाई उनके पास में वो नहीं है, द प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, उनके मार्जिन्स नहीं आ पा रहे हैं, दे आर स्लोली बीइंग वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट एंड द बिग फ्लीट ओनर्स आर कमिंग इन, मे बी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इवन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है FCM, RCM, उसके कारण भी है, बट मोर बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्केल्स इस तरह से टिल्ट हो गया है कि दे आर नॉट एबल टू कम्पीट। दे आर नॉट एबल टू कम्पीट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो जो नए तरह का बिजनेस है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, एंड देयर इज नो वन जो उनको उस चीज़ में एसिमुलेट कर सके। Plus also costs have also gone up. I mean, a truck is costing 50 lakhs. So how can a trucker actually buy a new truck? इट डज नॉट मैटर, एक्चुअली इट डज नॉट मैटर। अगर पहले जब हमारा शुरू के अंदर में मेरे फादर मुझे बताते थे कि हम वो डंडा गाड़ी बोलते थे मर्सिडीज़ की, जो 25,000 में लाते थे, तो अब 25,000 में भी लाते थे तब भी उनको कॉस्टली लगती थी, आज 25 लाख में लाते हैं तो भी कॉस्टली लगती है। इट डज नॉट मैटर, एसेट आपके जो भी प्राइस की मशीनरी आ रही है वो आएगी, लेकिन उस मशीनरी से आप ROI क्या निकाल रहे हैं ये मैटर करने लग जाता है। और आज की तारीख में फंडिंग अवेलेबल है, तो आराम से ट्रक्स के ऊपर में फंडिंग भी अवेलेबल है, तो वो आई थिंक इज नॉट अ इशू। इशू इज दैट ऑन द एसेट व्हाट वी हैव डिप्लॉयड आर वी मेकिंग एनफ मनी, दैट इज द इशू। तो वो क्यों नहीं पैसे बन पा रहे, वो देखने की जरूरत है। उसमें देखोगे तो आप आज ये भी देखोगे कि पहले भी 400 किलोमीटर चलता था, आज भी 400 किलोमीटर चलता है। आपके रोड बन गए हैं, आपके कॉस्ट बढ़ती चली गई है, डीजल का प्राइस कहाँ से चला गया, टोल आपके पास एक नई चीज़ आ गई है, आपकी वैसे कॉस्ट भी बढ़ गई, मैन पावर कॉस्ट बढ़ गई है। सारी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी जो रियलाइजेशन है वो आपकी कम हो रही है, रियलाइजेशन आपकी हो ही नहीं रही है। तो दिस इज हैज़ टू सी, लोड कैपेसिटी नहीं है। आज की तारीख में ट्रक जो चल रहा है वही 8,000-9,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल रहा। कोई बड़े रूट पे, अच्छे रूट पे दिल्ली बॉम्बे थोड़ा ज़्यादा कर लेता है, लेकिन ई-कॉमर्स में थोड़ा है मूवमेंट, बट अदरवाइज नॉट ई-कॉमर्स के अंदर में भी लास्ट पॉइंट के ऊपर में है जो अधिकतर जितने भी लोग पैसा बर्न कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग मनी एज सच। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारी पहले एक प्रेडिक्शन हम लोगों ने करी थी कि छोटे लेवल पे जो हमारे ट्रकर्स काम कर रहे हैं, ट्रक ओनर्स काम कर रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट और दिस लैंडस्केप इज गोइंग टू चेंज। तो वो चेंज हो गया है, तो वो हम लोग देखने लगे। करेक्ट। सो अब अगर हम नेक्स्ट पे जाके देखें तो दिस विल नाउ इम्पैक्ट स्मॉल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो स्लोली हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो हम 3 या 4 साल से चीज़ कर रहे हैं कि एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स जो 4PL सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर पाएंगे, खाली उन्हीं का जमाना रह जाएगा। तो अगले 5 साल बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमारे स्मॉल ट्रक ओनर्स हैं जो कि छोटे छोटे एरियाज़ को कर रहे हैं, कि लड़के दिल्ली बॉम्बे करने लग रहे हैं, कोई दिल्ली उसने पकड़ लिया, अहमदाबाद पकड़ लिया, किसने बॉम्बे अहमदाबाद पकड़ लिया, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट व्हाट द कस्टमर विल डिमांड फ्रॉम यू, और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडमेंट आपको चाहिए, जो आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपके सॉफ्टवेयर चाहिए, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है जो कस्टमर की वो बढ़ती जा रही, और उसके लिए जो आपको फंडिंग चाहिए, जो आपने उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट की ROI आपके पास है नहीं, तो कैसे करोगे? तो इसलिए जो छोटे आपके प्लेयर्स हैं वो अब इसमें से छोटे ट्रांसपोर्टर्स भी वो भी निकल जाएंगे। तो ये लैंडस्केप चेंज होने वाला है। देर मतलब नंबर्स बड़ा अजीब है बोलना, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 250 करोड़ से तो नीचे कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा। Is it? Yes. And when do you see this shift happening? This has already started. This has already started. Tell me one transport organization below 100 crores which is making money right now. They are not. They have some niches. लेकिन आप ये देखो सारे के सारे बिडिंग में जाने लग गए। आपकी रिवर्स बिडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाने लग रही है। रिवर्स बिडिंग के अंदर में डज नॉट मैटर आपकी क्या रिलेशनशिप थे, आप इस ऑफिसर को जानते थे, लॉजिस्टिक मैनेजर को जानते थे, आपके उससे रिलेशनशिप थे, आप कोई निश काम कर रहे थे। नो, एवरीथिंग इज गॉन नाउ। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होते जा रहा है, तो आपको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। देन द डिमांड ऑफ कस्टमर,
आज की तारीख के अंदर में ईवी बिल बनता है, उसके पार्ट भी है, उसको बढ़ाना है। अगर आपकी एक मिस्टेक हो जाती है तो जो आपकी पेनल्टीज पड़ती हैं और उसकी जो कंप्लायंस कॉस्ट पड़ती है वो आपको वाइप आउट कर सकती है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे यहाँ चल रहे थे, लोग कैश के अंदर पेमेंट करने लग रहे हैं, गाड़ी वाले को चले जा रहे हैं, लोगों को नोटिस आए कैश के लिए, नॉट अलाउड। पैन नंबर किसी का इंटीग्रेशन नहीं है ड्राइवर्स का, 20% का अंदर में डिडक्शन है, लोगों को नोटिस आ रहे हैं। तो पहले लोग सोचते थे सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, सारी दुनिया ही तो कर रही है ना, खाली मैं ही अकेला तो नहीं हूँ। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि चाहे सारी दुनिया कर रही तो सारी दुनिया ही फंसेगी। So There the is shift no has to be- escape. so you have to basically get more systematic, use extensive IT. Extensive IT, extensive system and processes, and then of course you need to collaborate. You need to collaborate, get into a system, get into a group. You can't do everything yourself. You need to have a partner which you can trust. Acquisitions, merger जो हम बार बार बात करते रहते हैं कि आपको वो सब करके साथ के अंदर में ही साथ चलना पड़ेगा। एक आदमी आपका करता है वहाँ से एक चाइना से वो उठा के लेके आता है, कंटेनर लेके आता है, एक शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है, यह एक क्लियरिंग करने लग रहा है, एक आदमी वहाँ स्टोरेज करता है, एक आदमी हैंडलिंग कर रहा है, एक आदमी उसको लास्ट माइल लेके जा रहा है, एक वहाँ स्टोरेज कर रहा है, एक उसके बाद आपका ई कॉमर्स करके लास्ट माइल की डिलीवरी करने लग रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करने लग रहा है। सो दिस आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन द लॉजिस्टिक्स प्रोसेस एंड दिस slowly and steadily जो कस्टमर्स हैं आपके, जो बड़े कस्टमर्स हैं, they are shifting to these players who can provide them the whole supply chain, not the element of it. Right, right. So going forward, एक road safety aspect भी आ रहा है with the number of accidents going up. अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो announcement किया for rest houses for drivers. How is that going to impact the industry on the whole? I'm so happy जो अभी हमने मुहिम 2003 में शुरू करी थी भैरव सिंह शेखावत जी के साथ के अंदर में कि ड्राइवर्स को सम्मान मिलना चाहिए, ड्राइवर्स को हमने आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। जो हम बार कर रहे थे हाईवे के ऊपर में इनके लिए हमारे कोई सुविधा बनानी है ड्राइवर्स के लिए, जिसलिए कॉन्स्टेंटली लोग हम मेहनत कर रहे थे। मेरे ख्याल आज वो पूरे टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं जितनी, उसके अंदर में हर 40 मीटर के ऊपर में 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे हम लोग सुविधा केंद्र बना रहे हैं ड्राइवर्स के लिए। तो अब ये एक बार शुरू हो चुका है, मैन्युफैक्चरर्स इसमें आ चुके हैं, OEMs इसमें आ चुके हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स इसके अंदर में आ चुके हैं, गवर्नमेंट इसमें आ चुकी है। तो ये दिन दूर नहीं है कि विल सी ए ट्रांसफॉर्मेशन कि ड्राइवर्स को पूरी सुविधा भी मिलेगी, ड्राइवर्स की सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी गवर्नमेंट सजग है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप विच इज़ हैपनिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट ITOA was the first one and ITOA was the pioneer to bring this issue in the forefront. एक स्टेप पीछे बस। Do you think this will help in tackling the driver shortage issue that we have been talking of? आज 20% कहाँ है? I mean, it's a random figure that everybody throws. But क्या ये फिगर कम होगा? देखिए, दो तरीके से कम होगा। सबसे पहली बात ये है कि अब मैं इसी फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर मैं इसमें आता हूँ कि जैसे जैसे आपके ट्रकर्स और ओनर्स, हम जो बात कर रहे हैं स्मॉल ट्रक ओनर्स, जब स्मॉल ट्रक ओनर्स खत्म होंगे तो ड्राइवर्स आपके प्रोफेशनली आएंगे। आज स्मॉल ट्रक ओनर एक ड्राइवर की जो सैलरी मिलती है उतना भी नहीं कमा रहा, तो दे आर कॉट इन अ विशियस सर्कल कि वो मालिक बन के रहें या ड्राइवर बन के रहें। तो एक बार जब ये वाला शिफ्ट आ जाएगा तो तब उसके बाद में ड्राइवर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज सैलरीज उनकी बढ़नी चालू हो जाएगी, कपल्ड विद कि सुख सुविधा उनको मिलने लग रही है, सोशल सिक्योरिटी मिलने लग रही है। एंड ऑफ कोर्स ये एक्सपेरिमेंट्स अब होने लग रहे हैं कि जैसे लॉन्ग रूट के ऊपर में ट्रक्स चेंज होने वाली बातचीत हो रही है कि वो एक दिन जाता है, या साउथ में कुछ लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है कि हम एक ट्रिप के बाद एक ट्रिप की छुट्टी देंगे ड्राइवर्स को। तो मैनी थिंग्स विल कम अप, और ऐसा नहीं है कि ड्राइवर्स ठीक है अभी शॉर्टेज है, उसके कई सारे रीजंस हैं, और वो मैं कई बार रीजंस बोलता हूँ कि वो सैलरी से भी ज़्यादा डिग्निटी के लिए कि कोई उनको सम्मान नहीं दे पा रहा रोड के ऊपर में उसको चलने का क्या कहना चाहिए, उसको पता ही नहीं है कैसे करना चाहिए, कब कौन उसको उतार लेगा, क्या उससे एक्सपेक्टेशन है। तो जब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सरल हो जाएंगी, थोड़ा आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी डिग्निटी बढ़ेगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि दे आर इसेंशियल पार्ट, तो फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ड्राइवर्स की सैलरी ऑफ कोर्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बढ़ेगी, और सोशल सिक्योरिटी आएगी तो ड्राइवर्स की कमी खत्म हो जाएगी। There is another ITHWA member, in fact one of the founder members, who is also very passionate about driver welfare. He has been advocating for rest houses for truck drivers for a long time. Even at the launch of the National Logistics Policy, he spoke in front of the Prime Minister, highlighting the need for rest houses for the drivers on highways. And perhaps
The Prime Minister responded to the request. So, how does Ramesh Agarwal feel about the announcement by the Prime Minister to set up 1,000 plus rest houses for drivers? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो खुशी का मौका या उनके एक चिंता का जो विषय जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने वक्तव्य में कहा, वो केवल एक ड्राइवर की कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे ट्रांसपोर्ट जगत के लिए एक बड़ी खुशी है। क्योंकि 75 साल के अंदर पहली बार किसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी ड्राइवर के बारे में चर्चा की। उस वंचित, उस अभावग्रस्त, उस पीड़ित, उस शोषित के बारे में आज तक किसी ने कोई चिंता नहीं की। हाँ, हालांकि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर, जिसको इटवा कहते हैं, वो हमेशा ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए काम करता आया और जिन्होंने शुरुआत ही वेलफेयर के हिसाब से की थी। जब माननीय उपराष्ट्रपति तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत जी जब हमारे एक सेमिनार में उन्होंने जब एज ए मुख्य अतिथि भाग लिया था, तो वहाँ से एक जन्म हुआ था। तो वो उठता उठता और छोटी सी चिंगारी और इतनी बड़ी बनी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से कहना पड़ा कि ये वो वर्ग है जिसके बारे में समाज चिंता तो करता है, मगर सरकार भी उसकी चिंता कर रही है और करेगी। एक क्या होता है कि एक वो मोस्ट यूजफुल है, हम सब जानते हैं, मगर मोस्ट नेग्लेक्टेड थे। किसकी नज़रों में? जो 142 करोड़ जनता में जो ट्रांसपोर्ट का ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि कितना यूज़फुल है, पर उन लोगों को ये पता नहीं था। वो हमेशा उसको एक सेकंड दर्जे का व्यक्ति समझते थे। अब जो उनके मान सम्मान के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, तो आम आदमी अब उनको, उनकी नज़रें बदल गई, उनका देखने का भाव बदल गया। अब उनको वो लगने लग गया कि आज जितने भी तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जैसे देश के बॉर्डर पे काम करने वाला एक सैनिक है, इसी तरह आंतरिक सैनिक के लिहाज से किसी को देखा जाए तो ये ट्रक का ड्राइवर है। तो ऐसा एक भाव बदला, और इस भाव से क्या होगा कि ट्रक ड्राइवर को ये महसूस होने लग गया कि हम भी इस तरह के जो आम नागरिक है उसके बराबर का दर्जा हमारा है। एक तो उनका वो स्टेटस बढ़ गया, एक दूसरा उनकी जो हीन भावना थी उससे वो बाहर निकले। वो जिंदगी भर में एक कहते हैं ना भय युक्त जीते थे, तो अब शायद लगता है वो भय मुक्त जिएंगे। What sets apart ITWA from other associations is the youth. ITWA as an organization has taken a conscious decision to let the youth be the face of the organization and handle the same, while the seniors play an advisory role. We spoke to the young and ever smiling working president of ITWA, Puneet Agarwal, to know more about the recent activities of ITWA and how he sees the future of this industry. And this is what he had to say. So we have been regularly engaging with the government officials. The new secretary, most secretary, Nagji has joined. So we had a couple of meetings with them. He's very progressive. He was the one who established the ONDC platform, and he encouraged us that ITWA has to come forward to partner. We can create an online freight exchange kind of thing powered by ONDC platform. So we've had one meeting with them. Another initiative is ULIP, where we are, ITWA has been amongst the earliest adopters, where the various services for tracking of vehicles using FASTag, e-waybill extension, that is activated. So we are partnering with a large meeting happened of all the stakeholders of industry. There as well we participated. We made a representation to MORTH about increasing the productivity of trucks. So India is what is catching the entire world's attention with our very stable, very powerful government, a decisive government, I would say, with Gati Shakti, so much investment in infrastructure happening, so much manufacturing happening. Wherever we go internationally as well, we talk to people, the respect for India has grown, and logistics is the key infrastructure, or key factor for competitiveness of a country. We have been seeing the cost of transportation and logistics coming down increasingly by the various efficiencies, and technology is going to be an important role. And as ITWA, we continue to focus on enabling the collaboration between partners and how can we reduce friction by interacting with the government to create a conducive environment. So logistics, I believe, is just at the beginning. With so much, India is lagging behind across the developed countries in terms of efficiency. But every day, every segment of the logistics, we are seeing more and more progressive actions by the government. Gati Shakti is
something which is going to shift to multimodal, green transportation, all these things. Manthan has always been an open forum to discuss issues, and many a times a solution is just round the corner waiting to be revealed. This Manthan session by AITHUA was no different. We will continue our coverage of the Manthan after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है, और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है। क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं, और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Trans India, real people, real emotions. We are at the World Geo Center in Mumbai, attending the West Zone edition of AITHUA's Manthan. Here are some random observations, comments, and solutions from AITHUA members during the course of the discussion. तो हमारी जो ये मंथन की शुरुआत 2013 में हुई थी। सबसे पहले हमने मंथन बॉम्बे में किया था, सी प्रिंसेस हॉस्पिटल में। इस तरह की एक टेबल हमारी थी, काफ़ी लोग दिल्ली से और अहमदाबाद से सब जगह से आए थे, एंड वी डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। सबसे अच्छा परिणाम ये निकला कि आपस में लोग एक दूसरे को मिलने लगे, समझने लगे, इश्यूज में शेयरिंग करने लगे। जो मेरी समस्या अगर उनकी भी समस्या है तो हम कुछ अलग लेवल से उसकी बात करते हैं, और सॉल्यूशंस भी निकलने लगे। इट वाज देयर। उसके बाद भी हमने आने वाले सालों में मंथन के अलग अलग प्रोग्राम किए, दिल्ली में किया, हैदराबाद में किया, और अगर कोरोना नहीं होता तो उस साल हमारे 4 टारगेटेड मंथन थे जो हम कर नहीं पाए। एनीवेज इस साल हमने फिर वो सीरीज शुरू कर दी, तो ये आज का इस साल का हमारा पहला मंथन चल रहा है। मंथन के अंदर में हम मुद्दे लेंगे, मुद्दे वो लेते हैं जो हमारे व्यापार से जुड़े हुए हैं, जहाँ हमको तकलीफ आती है। तो एक तो होता है तकलीफ पर रोना, और दूसरा होता है तकलीफ को समझना, और तीसरा होता है उसका समाधान करना। अगर हम समाधान तक पहुंचते हैं तब फिर हमारा मंथन सफल होता है। पेन पॉइंट्स, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हमारे पेन पॉइंट उसमें होते क्या हैं? हमने इसके लिए 3 पॉइंट को निकाला। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने 3 पॉइंट पर फोकस किया कि जिसके कारण हम लोग परेशान बहुत होते हैं। एक तो इंश्योरेंस का रिस्क, यानी वो क्लैरिटी इंश्योरेंस के बारे में कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, एक्सीडेंट होता है, तो जिम्मेवारी किसकी होगी और कितनी होगी। दूसरा है पेमेंट टर्म्स, ये हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते नहीं है क्लियरली, लिखते हैं तो उसकी वो एम्बिग्विटी रहती है कि कब से वो 30 डेज या 40 डेज शुरू होने वाले हैं, उसकी एम्बिग्विटी रहती है, बहुत सारी चीज़ें, और वो कभी भी समय पर नहीं मिलता। ये 90% केस में ऐसा होता है। तो तीसरा है जो व्हीकल डिटेंशन। यूँ तो लगता है कि इतने बड़े फ्रेट के अंदर में क्या है डिटेंशन, एक दिन का लग गया, लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स में डिटेंशन मेजर पार्ट हो जाता है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर गाड़ियों को 5-5, 7-7 दिन खड़ा रहना पड़ता है। कई जो हमारे नेपाल वगैरह के जो एक्सपोर्ट की गाड़ियाँ जाती हैं तो बॉर्डर पर खड़ी रहनी पड़ती है। तो इसको डिफाइन नहीं करें तो हमारे तकलीफ की बात होती है। कैरियर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको चेंज कराने के लिए जो पुराना वाला 1865 का एक्ट था, उसके लिए आईटीवाई ने ही पहल की थी, और आईटीवाई ने ही इसको एक्चुअली में ड्राफ्ट किया है उनके साथ में मिलकर, गवर्नमेंट के साथ में। तो इसमें 3 सेक्शन हैं जो हमारे इंश्योरेंस रिस्क को देखते हैं, वो सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन मैं उल्टा चलता हूँ। अगर सेक्शन 12 का क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी है, आपने अगर मेलाफाइड इंटेंशन से क्रिमिनली अगर कुछ काम किया है, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, वो आपको कोई भी इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर आप कोई प्रीमियम लेते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी को उसके हिसाब से
क्या कहते हैं कि एक इंश्योरेंस रिस्क लेके उसकी लायबिलिटी आप ले सकते हैं कि लेटर से आपने 1 लाख रुपए का एक हायर रेट्स के ऊपर बुक किया तो आपको वो इंश्योरेंस अपने कस्टमर को दे सकते हैं। दैट इज सेक्शन 11 इनहैंस्ड, जिसे लायबिलिटी हम बोलते हैं। और एक सेक्शन 10 है, वो आपकी लायबिलिटी को लिमिट करती है। और लायबिलिटी इस तरह से लिमिट करती है कि जो आपकी लायबिलिटी है वो 10 टाइम्स द फ्रेट है। अगर आपकी गलती से कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगर आपने सेक्शन 10 ओरल रिस्क में बुक किया हुआ है तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 10 टाइम्स द फ्रेट है। और उसमें भी हमारे पास में एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इसके अंदर में कैरियर एक्ट में प्रूफ करना कि भाई ये नेग्लिजेंसी आपके कारण हुई है, वो उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर है। ये ओनस जो होता है प्रूफ करने का कि भाई लायबिलिटी किसकी है, ये हमारे ऊपर कैरियर पे होती है। जो मटेरियल ओनर है उसको ये प्रूव करना नहीं होता। हमें ये प्रूव करना है कि नेग्लिजेंसी हमसे नहीं हुई। अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि नेग्लिजेंसी हमसे नहीं हुई तो हमारी लायबिलिटी निल है। कैरियर एक्ट के अंडर में योर कंसाइनमेंट नोट इज प्राइम फेसिया एविडेंस ऑफ द बुकिंग ऑफ गुड्स। तो जो हमने कंसाइनमेंट नोट पे लिखा है दैट विल बी टेकन एज ट्रू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो हमें ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि हम अपने उस पे लॉ रिलेशन पे क्या लिख रहे हैं। जो मैंने बताया, हमारा जो सेकंड मेन पेन पॉइंट है वो है हमारा पेमेंट्स। अभी पेमेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए वो आपके सामने हमने रखी है कि कंपनीज या तो एमएसएमई रजिस्टर्ड है या एमएसएमई की लिमिट से बाहर, 2 किस्म की कंपनियां हैं। तो अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो फिर उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है अंडर एमएसएमई कि मैक्सिमम क्रेडिट इज 45 डेज। इफ नॉट रजिस्टर्ड देन यू गेट रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं एमएसएमई में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि शेयर योर सर्टिफिकेट विथ ऑल योर कस्टमर्स। एमएसएमई अर्न्स यू इंटरेस्ट ऑन डीज, यानी कि जितना डिलेड पेमेंट उस पर आपको एमएसएमई इंटरेस्ट भी दिलवाएगा। ये तब होगा जब हम पहला काम हम करेंगे कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो। आगे इन्फॉर्मेशन और भी देंगे। फॉर नॉन एमएसएमई की बात कर लेते हैं कि जो एमएसएमई की लिमिट में नहीं आते, कौन आते वो आगे आ जाएगा कि कम से कम आप अपनी पेमेंट टर्म्स को डिफाइन जरूर कीजिए और आपके कोटेशंस में सब जगह पेमेंट टर्म्स विद इंटरेस्ट क्लॉज आपको डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि आप अपने हाथ में कुछ रखेंगे तब फिर आप लड़ सकते हैं, कोई रखेंगे नहीं तो लड़ने की जगह नहीं है। गेट पीरियोडिक कंफर्मेशन ऑफ योर आउटस्टैंडिंग की आपकी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपका एवरी मंथ या 15 डेज में आपका स्टेटमेंट जा रहा है और कंफर्मेशन आप मांगिए और उसमें लिख दीजिए कि योर नॉन रिप्लाई विल बी एज्यूम्ड एज योर कंफर्मेशन। क्योंकि लीगल सिस्टम में सामने पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं खड़ा है पेमेंट में, ये पार्ट जरूरी होता है, तो आपको कंफर्मेशन लेनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है अवॉइड गोइंग बियॉन्ड 60 डेज क्रेडिट। कोई कस्टमर बोलता है आपको 90 दिन की क्रेडिट चाहिए तो इसका मतलब उसको आपकी ट्रांसपोर्ट या सर्विस नहीं चाहिए, उसको आपको फाइनेंस चाहिए कि 90 दिन में आप इतना बड़ा अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके होंगे कि वो आपके पैसों से अपनी वर्किंग कैपिटल चला रहा है। तो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। सबको इतनी बुद्धि रखनी चाहिए कि कस्टमर को रूल आउट ही कर दीजिए अगर अपने को लगता है कि वो गलत टर्म्स पे जा रहा है। जब कोर्ट में गए बोला साहब मैंने तो पहले लिखा है 60 दिन तक तो मैं दूंगा ही नहीं, पेमेंट आफ्टर 60 डेज, देयर इज नो कैपिंग के मैं 60 दिन के बाद कब दूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट, पेमेंट विद इन 60 डेज और पेमेंट विद इन 90 व्हाटएवर विद इन। हाँ, अब ये भी है कि वो कई बार लिखते हैं सबमिशन ऑफ बिल का, सबमिशन ऑफ जीआर व्हाटएवर इट इज। सो आइदर यू कैन मेंशन पेमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग, मतलब आपकी एलआर डेट हो गई, और विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल। सो व्हाट इट इज, बट यूज द वर्ड विद इन, आफ्टर की जगह विद इन यूज करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हीकल डिटेंशन रिस्क। हमने रिस्क की लिस्ट में इसको भी रखा था कि देयर इज ए कॉस्ट फॉर डाउन टाइम ऑफ एनी मशीन। अगर मशीन मेरी गाड़ी खड़ी है तो मेरी कॉस्ट लग रही है। अंडर प्लेड वाइल नेगोशिएटिंग रेट्स, रेट नेगोशिएट करने में इस पर न तो हम ध्यान देते हैं और न कंपनी सोचते जो देते हैं वो देते रहेंगे। यानी हम 15 साल 20 साल पहले अगर हम इसको 700 रुपये दे रहे थे वही 700 फिर दे देंगे, तो ये चलता रहता है और हम भी उसको अंडर प्ले कर जाते हैं। वेरी लो फॉर ऑल दीजिए, ये चीज़ ढंग से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आपके व्हीकल की क्वालिटी चेंज हो गई, वो BS6 वगैरह पर पहुंच गए जहाँ पर आपकी 30-40 बढ़ गई, लेकिन वो डिटेंशन आपको वही देना चाह रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं तो कंटेस्ट करना पड़ेगा ना। तो अपने 81 एक चार्ट बना करके सर्कुलेट किया, दो बार 3 बार सबको किया हुआ है हमारी स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन बोल करके। तो वो चार्ट अगर आपके पास नहीं हो तो हम फिर उसको सर्कुलेट करा देंगे, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर है। ये चार्ट हम लोगों ने आपस में काफ़ी लोगों से डिस्कशन करके बनाया था। ये चार्ट हमने रखा था 10 टन तक का
12 घंटे से 2 दिन की ये रेट रहेगी, 3 दिन से 5 दिन की ये रेट रहेगी, और उसके बियॉन्ड 5 दिन फिर ये रेट रहेगी। और डिफरेंट अगर हम लोग पूरी इंडस्ट्री में इसको मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो सबको फिर ये क्या होता है ना, गुरु मंत्र की तरह हो जाता है। अगर सब लोग मांगेंगे, एवरीबडी इज कोटिंग इन द कोटेशन कि वी फॉलो द एडवर्ड डिटेंशन चार्ज। मनीष का कहना ये है कि हम उससे लड़े कैसे, सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो बोलता है 10 लोग कर रहे हो तो तुम 11वें अलग से बात क्यों कर रहे हो, ये उनका कहना है। तो पहला पार्ट तो उसका ये है कि हम 10 लोग क्यों नहीं बोले, आपको मालूम है 10 कौन से बाकी है, सबसे बात करो ना, बात करके मिलकर के वहाँ पर कोटेशन में सबमिट करो, तब उनको लगेगा ये तो सब मांग रहे हैं बैठ गए, तो फिर सबको ये बात नहीं बोल सकते कि कोई नहीं मांग रहा। और जहाँ कस्टमर बिल्कुल ही टेढ़ा हो जाता है, उसका आपको एक केस स्टडी मेरे को शेयर करनी है। आई रिक्वेस्ट अभिषेक टू शेयर दैट। एक केस स्टडी है जहाँ प्रॉब्लम थी और सारे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को थी, और उसका सॉल्यूशन क्या किया गया और कितनी कामयाबी मिली। अभिषेक। So we got a complaint from lot of members कि एक FMCG कंपनी है जिसका रिटेंशन का बहुत बड़ा इशू है। उनके यहाँ पे गाड़ियाँ ऑन एन एवरेज 5 दिन खड़ी रहती है। We verified with 4-5 members in ETWA who were working with them. We checked with everybody कौन काम करता है। हमने उनसे डिटेल मांगी कौन से लोकेशन में हो रहा है, एंड completely verified. We decided that they told us कि there is no point of writing to them. जैसे मनीष जी ने बोला कि कुछ होगा नहीं, लॉजिस्टिक्स मैनेजर कुछ नहीं करेगा, उसके 10 ट्रांसपोर्टर और खड़े हैं। तो we decided at ETWA that how do we tackle this? So we used a very different method. We wrote to their headquarters in the Europe, the European company. So we wrote to the European headquarters, to the head of the president global, कि भाई ऐसे ऐसे ये आपके मैटर है, इंडिया में हो रहे हैं, एंड हाउ योर टीम इज आर्म ट्विस्टिंग, वेरी वेरी नाइसली वर्डेड ऑफ कोर्स लेटर, आर्म ट्विस्टिंग वर्ड तो नहीं यूज़ किया, बट कैसे उनको दिखाया कि भाई आप लोग के जितने कंपनी के विजन मिशन स्टेटमेंट्स पे जो लिखा है आपने, वो आपकी इंडियन टीम नहीं फॉलो कर रही है। कैसे ड्राइवर्स को आप लोग 5 दिन खड़ी रख रहे हो, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, कैसे आप लोग वेयरहाउसिंग कॉस्ट फॉर देम इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एक्चुअल डिटेंशन ऑफ द ट्रक, तो हाउ दे आर पेइंग लेसर कॉस्ट फॉर दैट। So those kind of points we wrote. It was taken very strongly by their headquarters. The Indian team was actually pulled up, is what we understand. ETWA was invited to meet them. They were very very scared to meet us. They thought ETWA को union है, हमारा काम बंद हो जाएगा, गाड़ियाँ नहीं मिलेगी हमको. So they approached some of our members who are working with them to organize a meeting. We had a meeting with them in a very very nice environment. Explained to them the issues, and then they assured us that yes, now we understood the problem. We know where the gaps are. कि हमारी वेयरहाउस कम है, हमारी वेयरहाउस की स्पेस कम है, एंड जो 4-5 लोकेशन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे उनको हम एड्रेस करेंगे। टुडे बिफोर द मीटिंग आई स्पोक टू वन ऑफ द मेजर ट्रांसपोर्टर्स एंड ही सेड अभिषेक 70-75% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, 15-20% येस अभी भी है, बट दे आर वेरी वेरी कॉशियस। दे कॉल व्हेन दे टेल अस कि ये गाड़ी खड़ी होने वाली है, इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो। काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। जस्ट दैट वाज द केस दैट अमूल में जितनी भी कोल्ड चेन की गाड़ियां हैं, यू कांट स्विच ऑफ द इंजन बिकॉज द एसी बंद हो जाएगा, उससे ज्यादा तो डीजल चल जाता है। 700 रुपए देते हैं। वही बोल रही थी। हाँ एग्जैक्टली बोली के कोल्ड चेन वाले लोग को जनरली इवन इफ यू चार्ज 5000 उसमें क्या ड्राइवर की सैलरी निकलेगी, क्या उनका वेलबींग होगा, या डीजल का कॉस्ट निकलेगा, एंड दैट आल्सो दे आर नॉट रेडी टू पे, एंड कॉम्पिटिटर्स गो लोअर देन दैट। 700 रुपए देते हैं, कोई ऐसा डिपो नहीं है। उन्होंने क्या करके शायद C&F बना रखे हैं, तो वो लोग देखते हैं अमूल वाला तो कुछ बोलता नहीं है, वो स्पेस दूसरों का माल उतार लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में। अमूल की गाड़ी कहीं भी 10 दिन से पहले, आप कोई सा भी डेस्टिनेशन ले लो, 10 दिन से पहले कहीं खाली नहीं होती। नाउ वी हैव टेकन अ सब्जेक्ट ऑफ रिवर्स बिडिंग। कि मैक्सिमम कंपनीज जो होती हैं वो उनका ये कोट लेने का यही तरीका हो गया कि रिवर्स बिडिंग में आप शामिल हो जाइए रजिस्टर वगैरह करके, और उसके बाद में जो L1 होगा उसको हम देंगे या किसको देंगे या नहीं देंगे, वो सारी बातें। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या, पेरिल्स क्या है इसमें रिवर्स बिडिंग में, कि यू आर अप अगेंस्ट इनविजिबल, यानी आप किसके साथ लड़ रहे हो ये आपको पता नहीं है, आप लड़ रहे हो। पॉसिबिलिटी ऑफ ए डमी बिडर, अगर किसी ने डमी बिडर बिठा दिया, नीचा करते ही जाएगा वो, तो आपको क्या लगेगा, तो डमी बिडर के साथ आप कंपीट कर रहे हो। तीसरा एक इम्पल्स है कि ह्यूमन वीकनेस है, यार वो इतने में कर रहा है तो मैं उससे नीचे तो जा ही सकता हूँ, चल 20 घटाना है तो 20 घटा दो तो मेरे को मिल जाएगा। तो वो इम्पल्स है जो गैम्बलिंग की तरह से, देयर यू फॉरगेट अबाउट योर कॉस्टिंग पार्ट, मैं कुछ कमाने वाला हूँ कि खोने वाला हूँ, उस इम्पल्स में आप गैम्बलिंग करते चले आते हो। और नॉन क्लैरिटी अबाउट डिवीजन ऑफ द जॉब पॉइंट ऑफ, यानी कि अगर मिल भी गया तो L1 को सारा मिल जाए फिर तो ठीक है, आपका तरीका अच्छा है,
लेकिन एक्चुअल में L1 तो डमी मान लो रखा हुआ है, तो वो बोलते हैं हम L2 को इतना देंगे, L3 को इतना देंगे, इस तरह करते हैं। कई केस में ये भी होता है कि आप L1 से मैच कर जाओ तो आपको हम दे देंगे, इस तरह की बातें होती है। तो बेसिकली जो हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट व्हीकल हायरिंग कॉस्ट ही रहती है, मेजोरिटी 93-94%, 92% जो भी हम बात करें, तो वहाँ पर मोस्टली कंपनीज के अंदर काफ़ी बेसिक प्रोसेस रहता है कि कस्टमर से ऑर्डर कागज़ पे रजिस्टर पे लिख लिया और फिर 2-3 ट्रांसपोर्टर जिस लाइन के हैं उनको फ़ोन कर लिया, और उसके अंदर बेसिकली जब सप्लाई कम है तो रेट्स वगैरह जो है मार्केट का बेस्ट प्राइस हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा उसको कह नहीं सकते, और प्लस ट्रैफिक वालों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस को डार्सन में तो काफ़ी टाइम से ही हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ था कि कस्टमर का ऑर्डर आते ही हम सिस्टम में एंटर करते थे और वेंडर्स को SMS भेजा करते कि हमारे पास ये लोड है, आप लोग हमें कॉल करें गाड़ी प्लेस करने के लिए, या एप्लीकेशन भी बना के हमने सबमिट की। पिछले 2 साल पहले हमने एक इनोवेशन किया जिसके अंदर कि व्हाट्सएप के अंदर जो API चालू हुई, तो हमने फ्लैश जो किया वेंडर्स को, हमारे पास पूरे ब्रोकर्स का डेटाबेस है, कौन सा ब्रोकर कौन से लाइन पे गाड़ियाँ देता है, कौन से टाइप की गाड़ियाँ देता है, जो भी ऑर्डर कस्टमर के आते हैं उनको हमने व्हाट्सएप से भेजना शुरू किया कि आपके आज हमारे पास ये लोड अवेलेबल है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसमें फिर रेट डालिए। तो काफ़ी हमारी टीम ने मेहनत भी की, तो आज के दिन मैं मानता हूँ कि हमारी 70-80% गाड़ियाँ जो लगती हैं स्पॉट रेट पे, तो वो इन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के थ्रू लग रही है। We will continue our coverage of ITWA's West Zone Convention after this very short break. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. चलेंगे अपने ताव में, तंगलियां छोटे रास्ते अटके न किसी पड़ाव में, गली हो बगल की या मीलों दूर के गांव में, बेधड़क बेझिझक चलेंगे अपने ताव में, चलेंगे अपने ताव में। चिलचिलाती धूप हो जितनी हम तो रहेंगे छाँव में, भारी भरकम जो भी हो ना आए किसी दबाव में, सड़कें चाहे जितना काटे पड़े न छाले पाँव में। बड़ा दोस्त हो राहों में तो चलो अपने ताव में। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. The Manthan, or the West Zone Convention of ITWA, was sponsored by IDFC First Bank. They got the opportunity to showcase their products and services, and here is a glimpse of what Roshan Gumala had to say on the offering in case of FASTag. IDFC Bank is at the forefront. We are one of the strongest players जो है FASTag के प्रोडक्ट के हिसाब से, एंड हम लोग दोनों इशुएंस में और एक्वायरिंग में वी आर अमंग्स द लीड प्लेयर्स। और आज के तारीख पे वी हैव नाउ क्लोज टू अबाउट 600 टोल लोकेशंस जहाँ पे हम लोग एक्वायरिंग का सोल्यूशन देते हैं। सो व्हेन आई से एक्वायरिंग सोल्यूशन, जो बैरियर खुलता है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सोल्यूशन जो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। और फास्टैग जो है हम सब जानते ही हैं कि फास्टैग का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंस होता है। सो in addition to what we do, टोल के अलावा we are one of the first banks जहाँ पे हम लोग ने कोलैबोरेट किया हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ। सो इस कोलैबोरेशन के वजह से जो बैलेंस फास्टैग पे है उसको यूज़ करते हुए फ्यूल का पेमेंट भी किया जा सकता है। सो बहुत ही सिंपल है, जस्ट व्हीकल नंबर और फ़ोन नंबर के माध्यम से एक OTP जनरेट होता है और वो OTP टर्मिनल पे डालने पर जो फ्यूल का पेमेंट है वो फास्टैग से डिडक्ट हो जाता है एंड पेमेंट ख़त्म हो जाता है। सो काफ़ी हम लोग ये अग्रेसिवली अभी ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी किसी भी HPCL आउटलेट में फास्टैग का बैलेंस के साथ वी कैन पे फॉर वॉट एवर फ्यूल हैज़ बीन परचेज्ड। सो दीज आर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग कई लोकेशंस पे एक्टिविटीज़ करते हैं और इशुएंस के। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर ओवर हियर। The Manthan session was followed by a talk on TDS by expert Mr. Ajay Agarwal. And the last session was a talk on investment and logistics companies by Carlton Pereira.
Both these sessions were informative and deep dive into the issues. AITWA also took this opportunity to felicitate and acknowledge the achievements of some of its members from the West Zone. Since the convention was being held in the West Zone, AITWA pulled out these achievers. Here we see the achievers receiving their awards. That was our exclusive coverage of AITWA's Manthan, or the West Zone Convention if you may call it. We will continue the coverage of these events from other zones as well. Meanwhile, we will be back with you next week. You are watching Ashok Leyland Presents Trans India, Real People, Real Emotions. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.